आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मार्केट स्लगिश हैं और सबसे ज्यादा पेन में है टेलीकॉम स्टॉक, और इस पेन के पीछे के जो नाम है वो है रिलायंस जियो। ये रिलायंस जियो का ही इफेक्ट है कि सभी टेलीकॉम शेयर्स कमजोरी के साथ दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं, और ट्रेड करे भी क्यों ना। जो अनाउंसमेंट हुई है 42वीं एजीएम में वो काफी स्ट्रांग है, काफी अग्रेसिव हैं, और एक कंपेलिंग टैरिफ प्लान्स के साथ मुकेश अंबानी आगे आए हैं। जी हां, 5 सितंबर को लॉन्च होगा, कमर्शियल लॉन्च होगा रिलायंस जियो का। 31 दिसंबर को अक्रॉस इंडिया रोमिंग चार्जेस फ्री होंगे, सारी डोमेस्टिक वॉइस कॉल्स को फ्री रखा गया है। महज 50 रुपए खर्च कर आप 1 GB डाटा पा सकते हैं रिलायंस जियो में, और यही वजह है कि टेलीकॉम स्टॉक्स दबाव में हैं। और तमाम एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि इन अग्रेसिव टैरिफ प्लान्स के बाद पूरी ही इंडस्ट्री में टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए जो ये प्लान हैं वो किसी डिसरप्शन से कम नहीं है, और ऐसे हालात में जो अगले 12 से 18 महीने होंगे वो पुराने ऑपरेटर्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होंगे। लेकिन जो अहम अनाउंसमेंट्स हुई हैं इन एजीएम में वो एक बार फिर से सुन लेते हैं। The current market practice is to charge for data a base rate of between 4,000 and 10,000 rupees a gigabit. Jio will have a base rate which is 1/10 of this. Our data plans go even further with an effective rate of data of only 5 paise per MB of 50 rupees a GB. And the more data you use, lower the rate. I believe that these are the absolute lowest data rates anywhere in the world. Today, that starting coming Monday, the 5th of September 2016, Jio's data, voice, video, and the full bouquet of Jio's application and content will be available for everyone, absolutely free till 31st December 2016. We are calling this the Jio Welcome Offer. This is perhaps the largest introductory offer anywhere in the world. We Indians have come to appreciate and applaud Gandhigiri. Now, every Indian can do Datagiri, which is an opportunity. And the incumbent operators not to misuse their market power by creating unfair hurdles when it comes to providing point of interconnect between their network and Jio's network. Such hurdles will serve only to create a poor experience for Jio customers who are trying to make calls to the incumbent operator's network. In fact, in the last week alone, Jio customers suffered over 5 crore call failures to other networks because of insufficient interconnect capacity. This gives our customers the impression that voice is not working, but I want to assure all customers on the Jio network that we have the highest quality, best voice network, and once the incumbents give us interconnect, you will experience voice like never before. Let me point out some key aspects. We have price points starting from rupees 19 per day for the occasional data users, to a monthly rupees 149 plan for the light data user, and all the way up to a monthly rupees 4,999 plan for the heaviest data user. So Jio provides, and as data is the digital oxygen, it should be available to all Indians. So we provide this all the way from 150 rupees a month to 5,000 rupees a month. World over, operators charge only for data, while voice and messaging
are essentially free. So, ladies and gentlemen, today I have great pleasure in announcing a revolutionary concept for the Indian market. All voice calls for Jio customers will be absolutely free. No Jio customer will ever pay for voice calls again across India to any network. And in the spirit of One India, roaming charges will also be zero across India. तो की हाइलाइट्स आपने सुनी। जियो कस्टमर्स के लिए वॉइस कॉल्स फ्री होंगी, डोमेस्टिक रोमिंग फ्री होगी और एवरी इंडियन कैन डू डेटा एग्री। और ये मुमकिन भी है जब महज 1 GB के लिए आपको सिर्फ 50 रुपये खर्च करने होंगे। और अभी जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स चार्ज करते हैं वो 250 रुपये के आसपास की राशि चार्ज करते हैं। और इसीलिए एंड में उन्होंने जब पूरी एजीएम को वो टुवर्ड्स एंड की तरफ ले जा रहे थे तब उन्होंने ये कहा था कि जियो के साथ लाइफ डिजिटल होगी और लाइफ ब्यूटीफुल होगी और डेफिनेटली कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को इसका फायदा पहुंचेगा भी। इनफैक्ट सुबह इस एजीएम के अनाउंसमेंट के बाद कई एक्सपर्ट्स से, हमारी कई इंडस्ट्री बॉडीज से बातचीत हुई और वो ये मानते हैं कि जियो के आने के बाद इंडस्ट्री में डिस्ट्रप्शन होगा। COAI के DG राजन मैथ्यूज से बातचीत हुई जिसमें उन्होंने कहा कि जियो के लॉन्च से टेलीकॉम सेक्टर में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। एक्सक्लूसिव बातचीत हुई उनके साथ, क्या कहा उन्होंने सुन लेते हैं। रिलायंस जियो ने अपने टैरिफ्स की घोषणा कर दी। हमारे पास बात करने के लिए इस वक्त COAI के राजन मैथ्यूज हैं। राजन मैथ्यूज सर, किस तरह के टैरिफ देखते हैं आप रिलायंस जियो के? So I think RIL has announced some very compelling tariffs, free voice, and then all bundled services in a data plan. Beginning at 19 rupees for a gigabit, going up to 499 rupees. So I think there's sufficient margins in there for competition to position their products, because again, if we have an ARPU today of 186 rupees or somewhere in there, going up to 499 rupees is a pretty good benchmark for the industry. So I don't think it's all that bad. Of course, the 19 rupees or the 49 rupees, 50 rupees benchmarks, already the 49 rupee benchmark is prevalent in the market from the competition. So we don't see too much of a negative as a result of the tariffs. I think ultimately good for the consumer, good choices for the customer. आपको लगता है कि इससे टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर दबाव पड़ेगा and they will be able to match the tariffs offered by the Reliance Jio? I think the operators never go head to head. The clever ones always position their offerings in a different way. So if RIL offers it for 24 hours, they may offer it for 2 days. If offer for 30 days, I'll offer it for 10 days. And if it's 1 gigabit, the incremental price will be free. So I think it's the total bundle, and our operators are very clever at making sure that the consumer is able to choose what is appropriate for them. So again, I think the marketplace will decide, but these are not too detrimental. I think they are quite able to be competitively met. लेकिन 70% रेवेन्यू आपका वाइस से आता है and वाइस रिलायंस जियो is offering for the free. Do you think that is a deterrent for the telecom companies? That will be a negative impact on them? I think for those who are only offering voice on a 2G network, I think that will be a challenge. For those who already have rolled out 3G and 4G services, that is already the case between Voda, Idea and everybody else. So I think that will not be a major challenge. Only for those 2G folks, it will be a challenge. तो डेफिनेटली रिलायंस जियो के आने के बाद कंपटीशन बढ़ेगा और उस कंपटीशन की हीट हमने पहले से ही सेक्टर में देखी भी है। ऑलरेडी जो कंपनियां हैं, क्योंकि इंडिकेशंस पहले से ऐसी थी कि जो रिलायंस जियो के टैरिफ प्लान्स रहेंगे, जो रेट्स रहेंगे, वो सब्सटेंशली लोअर साइड पर ही रहेंगे जो कि अभी के रेट्स हैं। और उसको मीट करने के लिए पहले ही जो दूसरे ऑपरेटर्स थे वो गियर अप कर भी रहे थे, प्राइसेस भी उन्होंने रिड्यूस किए थे। लेकिन मौजूदा जो प्राइसिंग हुई है उसको देखते हुए शायद और कट्स उनको अपने रेट्स में लाने पड़े। लेकिन अगर जियो के लॉन्च के बाद आपके मन में कोई भी सवाल है, टेलीकॉम शेयरों पर आप कोई भी राय लेना चाहते हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800-180-3545। इम्तियाज कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। टेलीकॉम स्टॉक से ही उनसे चर्चा शुरू करते हैं। इम्तियाज, एक सीवियर फॉल आज के सेशन में देखा जा रहा है। आइडिया सेलुलर 8% नीचे है, भारतीय एयरटेल में भी 6% की कमजोरी देखी जा रही है। टाटा कम्युनिकेशन, रिलायंस कम्युनिकेशन, हालात सब जगह पेनफुल हैं।
खास तौर से अगर अभी आइडिया की बात करें जो कि अभी दिन के निचले स्तरों पर आ चुका है, 9% के आसपास की कमजोरी दिखा रहा है, आज जो जिस तरह का ब्रेकडाउन देखा गया है ये और कितना स्ट्रेच हो सकता है अगर एक एक करके इन स्टॉक्स पर कमेंट ले, खास तौर से आइडिया और भारती इन तरह से और कितना कमजोर होते हुए दिख रहे हैं आपको अगर टेक्निकल चार्ट्स पर प्योरली देखें? गुड आफ्टरनून दीपाली। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम देख रहे हैं यहाँ पे तकरीबन मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स भारती एयरटेल है और आइडिया है, काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हुआ है यहाँ पे, और टाटा कम्युनिकेशन अभी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेफ मोड नज़र आता है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा वहाँ पे पैनिक होते हुए नज़र नहीं आ सकता। पर 3 स्टॉक्स जो है, रिलायंस कम्युनिकेशन, भारती एयरटेल, आइडिया, इन तीनों के जो मंथली चार्ट थे वो यहाँ से बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं आफ्टर दिस फॉल। आइडिया तो हमने पहले भी देखा यहाँ पे 140-120 के रेंज से लगातार बिकवाली हो रही है, और तकरीबन आरकॉम में भी सेम बिकवाली हमने देखी है। बट भारती में मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतनी बड़ी बिकवाली देखने मिलेगी, बट एज ऑफ नाउ उसमें भी यहाँ पे कंटिन्यूएशन ऑफ पैटर्न हो गया। तो मेरे ख्याल से यहाँ से और 3 से 5% की और बिकवाली हम यहाँ पे देख सकते हैं आने वाले दिनों में। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पे सेफ होना चाहिए। यहाँ पे कोई फ्रेश शॉर्टिंग की भी अपॉर्चुनिटी आपको नजर आ रही है इन स्तरों पर? टेलीकॉम स्टॉक्स में कोई चुनेंगे आप पोजिशनल पर्सपेक्टिव से मौजूदा हालात को देखते हुए? देखिए, मेरे ख्याल से इन स्टॉक्स में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक्स में गिरावट हो चुकी है। अगर कुछ बाउंस आता तो हम वहाँ पे देख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी बन जाएगी वहाँ से, बट एज ऑफ ना करंट प्राइस पे मेरे ख्याल से अगर किसी ने निवेश किया हुआ होगा तो मेरे ख्याल से उनको एक सेफ बिड यहाँ पे लगानी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँगा भारती एयरटेल की, तो जहाँ से उनकी रैली चालू हुई थी 282 से रैली चालू हुई थी, जो कि तकरीबन 345-350 तक जा चुकी थी, और वहाँ से वापस से डिक्लाइन आ रहा। तो मेरे ख्याल से 282 काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट होगा। सिमिलरली पैटर्न हमें आइडिया में वो ब्रेकडाउन हो चुका है, आरकॉम में तकरीबन ऑलमोस्ट उसी के आसपास है। तो मेरे ख्याल से ये बिकवाली कंटिन्यू रहेगी, बिकॉज ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इनके बिजनेस मॉडल को ज़्यादा हिट कर सकता है ऑन द फंडामेंटल फ्रंट। जी, एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी देख लेते हैं, क्योंकि एजीएम के दौरान थोड़ा वॉलेटाइल ये स्टॉक हुआ था, लाल निशान में आया, फिर हरे में गया और अब वापस थोड़े से दबाव के साथ ट्रेड कर। आज के इंट्राडे चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो वॉलेटिलिटी साफ दिख रही है, अभी करीब 8 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है 1050 के स्तर पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज कैसा लग रहा है अभी आपको इम्तियाज? देखिए दीपाली जी, इसमें ना जितने भी टॉप्स बने हैं वो तकरीबन 1070 से लेके 1090 का रेंज है। जब तक ये 1090 रिलायंस इंडस्ट्री ब्रेक नहीं कर देता, मेरे ख्याल से कोई फर्दर यहाँ पे डेवलपमेंट हमें अपसाइड देखने मिलना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, लेट सपोज अगर 1090 ब्रेक हो जाता है, वहाँ से क्लोजिंग मिल जाती है, तो मेरे ख्याल से वहाँ से एक न्यू टेरिटरी रिलायंस के लिए चालू हो जाएगी, जो कि स्टॉक्स को तकरीबन क्लोज टू 1200 तक लेके जा सकता है। बट एज ऑफ नाउ जब तक 1090 के नीचे मेरे ख्याल से सेफ बेड है, कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर सकते यहाँ पे, ना बाय साइड पे ना सेल साइड पे। अगर इनके पास निवेश किया हुआ है तो मेरे ख्याल से थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर मोमेंटम पिक होता है 1-2 दिनों सेक्शन में, 1090 ब्रेकआउट होता है, मेरे ख्याल से काफी अच्छा मूव देखने मिलेगा। जी, इनफैक्ट अब एक मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, मिस्टर महेश उपल हमारे साथ है, टेलीकॉम एक्सपर्ट है। मिस्टर उपल, गुड आफ्टरनून। एजीएम आपने सुनी होगी पूरी, जो स्टेटमेंट्स आए और जैसे जैसे स्टेटमेंट्स आ रहे थे रिलायंस जियो को लेकर, वैसे वैसे टेलीकॉम शेयर्स नीचे आ रहे थे, और नीचे आने के पीछे जो वजह थी वो भी सबको क्लियर है। ये रिलायंस जियो का इफेक्ट ही है जो इन स्टॉक्स पर आज हम देख रहे हैं। लेकिन जो प्राइसिंग पर, जिस प्राइसिंग के साथ, जिन प्लान्स के साथ रिलायंस जियो आ रहा है, डेफिनेटली टफ टाइम्स जो हैं वो आने वाले हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री के। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें ये जो रिलायंस जियो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा और बड़ा ही फॉर्मिडेबल प्लेयर है, और उसने जो अपना एंट्री किया है उसमें उन्होंने मार्केट शेयर पे भी और उनके रेवेन्यूज दोनों को टारगेट किया है, वॉइस को भी टारगेट किया है, डेटा भी टारगेट किया है। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें कोई शक नहीं कि वो भी कोई मामूली कंपनियां नहीं हैं, और उनके पास भी वो सब ऑप्शंस हैं जो इस वक्त रिलायंस के पास हैं। तो वो देखना पड़ेगा। पर इसमें कोई शक नहीं कि जहां तक ग्राहकों का सवाल है उनके लिए ये खबर अच्छी है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा जो है उसकी इंटेंसिटी काफी बढ़ जाए। कंपटीशन बढ़ता है तो बेनिफिशियरी कस्टमर ही रहता है। लेकिन मिस्टर उपल,
अब जो बेंचमार्क सेट कर दिया है रिलायंस जियो ने आज एजीएम में, उसे मीट करने के लिए या फिर इंक्रीज्ड कंपटीशन को कोप अप करने के लिए विकल्प क्या है अब टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास? अभी का जो फोकस रहा था इन कंपनियों का, मैक्सिमम जो रेवेन्यूज उनके आते थे वो वॉइस कॉल से आते थे, थोड़ा सा पोर्शन डेटा रेवेन्यू से भी आता था, लेकिन जिस तरह से रिलायंस जियो ने वॉइस कॉल्स फ्री करने की बात कही है, अब ऐसे में क्या टेलीकॉम ऑपरेटर्स को डेटा रेवेन्यूज पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कंपैरेटिव टू वॉइस कॉल्स? और अभी के जो प्राइसेस हैं उनके उससे सब्सटेंशियली लोअर रेट पर रिलायंस जो अपने सर्विसेज ला रहा है, तो ऐसे में प्राइसेस को नीचे लाना ही उनके पास अभी विकल्प है अपने कस्टमर को रिटेन करने के लिए, या कोई और ऑप्शन भी है? नहीं, उनके पास ज्यादा ऑप्शन कभी भी नहीं रहता किसी भी मार्केट में। यदि आप आपकी प्राइस कंपेटिटिव नहीं है, यदि आप अपने कंपेटिटर से प्राइस में ही बीट हो जाते हैं, तो फिर आपके लिए चांस कम रहता है। तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि ऑपरेटर्स को जो कुछ भी रिलायंस ने किया है उससे मिलता जुलता करना ही पड़ेगा यदि वो ज्यादा अपना मार्केट शेयर लूज नहीं करना चाहते। और इसके लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आप देखेंगे कि प्राइसेस भी घटेंगे और इस किस्म के वॉइस के ऊपर भी नई डील्स आएंगी। जी, चलिए, शुक्रिया मिस्टर उपल, समय दिया आपने और बातचीत की। तो डेफिनेटली ऑप्शन ज़्यादा नहीं है पुराने ऑपरेटर्स के पास, उनको डेटा सर्विसेज पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अगर इंक्रीज्ड कंपटीशन को मीट करना है, और प्राइसेस भी नीचे लेकर आने होंगे अगर अपने कस्टमर्स को रिटेन करना है। 60, 70, 80% तक का रिडक्शन ऑलरेडी किया गया है 3G 4G प्राइसेस में, लेकिन मौजूदा अनाउंसमेंट जो हुई है रिलायंस जियो की ओर से, उनको देखते हुए ये रिडक्शन भी इनफ नहीं है। इनफैक्ट एक कॉलर अब हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, राजीव अरोड़ा है। राजीव, गुड आफ्टरनून, पूछिए सवाल। इनफैक्ट फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है।